Hello dear students. Yesterday I explained you that what is the meaning of measurement. So maybe you have come to know that measurement simply means we are talking about a numerical value along with its unit. Then the measurement gets completed. Before that, we should also aware of this thing that what actually we are going to measure in physics or in day-to-day life. So either you talk about the physics or you talk about the data. Hello students. Hello students. Yesterday I explained you the units and measurement where we talk about the measurement, its definition, its importance, its examples, how the measurement is important in our life and it plays an important role, giving example of different kind. I also explained you the unit. I also explained you the physical quantity. So all that we have discussed, physical quantities are those terms which are used to describe any physical phenomena or you can say natural phenomena. So whatever activity you are going to perform, suppose a tailor, you are going to be for stitching of your clothes and you are visiting a tailor, then simply he is taking your measurement, length of hand, length of legs, waist and chest and this all. So everywhere measurement is very important. But in physics, especially it is more important because without measurement, we can't study the physics. Okay, so let's just start. We have finished measurement. We have finished measurement is based on numerical value. Measurement of anything else in this world requires only two things. One is numerical value, which is called in physics magnitude. Second one is your second one जो आपका होता है वो होता है आपका यूनिट. और कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि if you are speaking without unit, how it seems to be, how it feels very bad, very, you know, not practical. Simply I gave you the example that a boy is going to reaching to the kirana store, provision store and asking about give me five. So it seems to be very stupid thing that what five you want. But as soon as the boy says I want 5 kg rice and simply he is giving it. Shopkeeper is just measuring, taking its weight on the balance and giving you the packet of 5 kg rice. Because now, whatever you were needed, that you have speak this in a full measurement. Initially, you were talking about number. So measurement is done, physical quantities definition is done. Second thing, units also done. Units, what is unit? A standard reference. एक किराने की दुकान जो चलाता है एक बनिया, वो बनिया के पास स्टैंडर्ड मेजर क्या है उसके बाट. बेटा भी वही बनिया भी वही चलाता, वो मर जाता है उसका बेटा भी उसी बाट को यूज कर रहा है और वो मर जाता है तो उसका बेटा का बेटा भी वही यूज करता है. तो क्या मतलब हुआ कि जो बाट है कि तराजू पे वही स्टैंडर्ड मेजर है, वही यूनिट है. कोई भी वजन आता है तो किराने की दुकान पे सब तोल के ही मिलता है या फिर लीटर में कैन उठा के दे देता है, वो एक अलग बात. कपड़े की दुकान पे जाओगे, बेटा हो, दुकान वाला मर गया उसका बेटा चलेगा तो वो एक ही मीटर को यूज करता रहेगा पीढ़ियों तक जब तक वो उसके डिजिट्स ओके घिस नहीं जाते. तो कपड़े की दुकान वाले के लिए जो मीटर है वो स्टैंडर्ड मेजर हो गया, वही उसका यूनिट है. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज वो लेंथ मेजर कर रहा है. बनिया किलोग्राम क्योंकि उसका दिन भर तोलना, ये 1 किलो शक्कर, आधा किलो गुड़, फलाना ढिकाना. लेकिन अब फिजिक्स पे आ जाते हैं, बहुत हो गया घरेलू बातें बहुत हो गई. अब थोड़ा फिजिक्स में अब फुल प्रोफेशनली एंट्री मारना है आज. तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी आर द टर्म्स which are used to describe any physical or natural phenomena. So basically the physical quantities are classified into the three categories. One is fundamental.
What does it mean? Means they are basic. Okay. Means they are independent. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं, ये जो है सो है, ठीक है. Last in the last I will give you the one example where you will be understanding it better. So the very first type of physical quantity is fundamental or basic quantities. Why they are called fundamental or basic? Because they are independent. Okay. How many they are? They are only seven in the world. What are that? Length, mass, time, current, temperature, amount of substance and intensity. इसमें से ये दो जो है केमिस्ट्री में जाते हैं, फिजिक्स में भी आता है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट, बट मोस्टली ये दोनों केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, बाकी सब फिजिक्स का है. बट when we are talking about units, we cannot separate that what is chemistry, all are science. So there are seven physical quantities which are decided basic or fundamental or independent, because they are basic, they are not depending on others, they are independent, that's why they are basic. इसका मतलब दूसरा भी है कि इन सेवन के अलावा दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलता है वो सब इन्हीं से बनेगा. जैसे दुनिया का जितना भी इंग्लिश है लैंग्वेज, वो 26 अल्फाबेट से बना है. अब आप दुनिया की कोई भी इंग्लिश की कुछ भी उठा लो, लिटरेचर, योर टेक्स्ट बुक, anything else, whatever, even I have mentioned this all, any word you just pick up, you will find there are letters are taken from alphabets. How many they are? They are only 26. So 26 alphabets are basic. It is the base of whole English language. Hope you understand what I'm saying. So as the 26 alphabets are the whole English base of whole English language. Similarly, digits 0, 1, 2, 3 up to 9 and 4 sign plus, minus, into, divide is the basic of mathematics. World's maths is based on these digits. You will talk about XYZ, that is part of algebra. You cannot study algebra without this. In algebra also you are adding, subtracting, this and that. If you are talking about trigonometry, then also you find the length of the sides in numbers. Algebra is also the numbers. Without constants, how can you study the algebra? Hope you are getting it. So guys, as the base of English language is 26 alphabet, as the base of mathematics is 4 signs, operation, plus, minus, into, divide, and digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Similarly, you can think like that only. कि फिजिक्स के अंदर जो कुछ है माई बाप, यही है, यही है माई बाप सबके. माई बाप मतलब इन्हीं से सब बने, जिनसे सब बनते हैं वही माई बाप. हम जिनसे बने वही हमारे माई बाप, जिन्होंने आपको जन्म दिया आपके माई बाप, मदर एंड फादर. तो एक्सेप्ट दिस सेवन, as many other physical quantities are there in physics, except this set, all are known as a derived. Why derived? What is basic and derived? For example, let me clear. Suppose I am giving one example to clear the concept of basic and derived. If I said that suppose I am taking ice cream, that is derived from milk. Suppose I am purchasing cheese, I am eating cheese, that is derived from milk. Suppose I am purchasing paneer, that is derived from milk. Suppose I am eating curd, that is derived from milk. Suppose I am eating sweets, that is derived from milk. So milk is the basic. All are made from that. Suppose I am purchasing pure ghee, cow ghee, that is derived from milk. Similarly,
Byproducts can be many, but the main product is only milk. Similarly, in physics, only 7 quantities are basic. Except these 7, all are derived. All are derived. इन 7 के अलावा जो भी आएगा भैया वो सबको derived बोले. ठीक है. अब दुनिया में कितने करोड़ों लोग, लेकिन आप फैमिली मेंबर जब भी पूछो तो कुछ लोगों के नाम बता दो. बस वैसा ही है कि जैसे दुनिया में आपका परिवार, आपकी फैमिली, एक उसमें गिने चुने लोग होते हैं, 10, 20, 50, 100, 150, बस. बाकी पूरी दुनिया क्या है? वो दुनिया है. और आपका except other human beings of the universe is dunya, and your persons are family. Similarly, 7 units are basic, rest of them are derived. भैया फिजिक्स जिसको जल्दबाजी होता है वो बच्चा नहीं पढ़ सकता. फिजिक्स के लिए अब आप बोलोगे क्या है ये छोटी बात, हमने तो कल ही पढ़ लिया था, परसों पढ़ लिया, 1 महीने पहले पढ़ लिया. बहुत बढ़िया बात है भैया, तो जल्दी से पढ़ के बैठ जा. कोई ट्रेन तो खड़ी नहीं है जो जल्दी जाके बैठेगा तो तेरे जाने से जल्दी चली जाएगी. वो अपने टाइम से ही जाएगी, मतलब जब एग्जाम आना होगा तभी आएगा. और अच्छे से पढ़ोगे तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले होता है बेसिक, जो इंडिपेंडेंट है उनको बेसिक बोलते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है. उनकी जो यूनिट्स होती है मैं 2 एक साथ बता रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स की बात हम अलग कर ही नहीं सकते, उनके साथ में करना पड़ेगा. तो ये जो दोज हु आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, their units are called basic units. The units of basic physical quantities are called basic. Length, basic unit is meter, its symbol is m. Mass is the physical quantity, basic, its unit is kilogram. Times, second. Current, ampere. Temperature, Kelvin. Amount of substance, mole. Intensity of candela. So these are the 7 physical quantities which are independent, basic, and their units are called basic units. So what are basic units? जैसा physical quantity होता है उसके unit को भी उसी नाम से जानते हैं. If you are talking about basic unit, means the basic physical quantity, the units of basic physical quantities are called basic units. Similarly, derived quantities which are made here. Why they are called derived? Because they are obtained from fundamental. So as many, all except these 7, all are derived. Number 1, why derived? Because they are obtained by these. कैसे बनाओगे? 2 ही काम करना है. फिजिक्स में कहीं नहीं लिखा है, किसी यूट्यूब के वीडियो में भी चले जाना, दुनिया भर की टेक्स्ट बुक उठा के देख लेना, जो हुकुम सर बोल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल से बनता है, ये तो हर टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन कैसे बनता है ये कोई नहीं बताता है. 2 ही टाइप से बनता है, याद रखना लाला, नोट कर लो, चेक कर लो, ठीक है, काम आएगा. या तो मल्टीप्लाई करने का और या फिर डिवाइड करने का, बस. प्लस से कोई यूनिट नहीं बनता है, माइनस से कोई यूनिट नहीं बनता है. मीन्स किलोग्राम प्लस सेकेंड, नो यूनिट. किलोग्राम इंटू सेकेंड कैन बी यूनिट, किलोग्राम बाय सेकेंड कैन बी यूनिट. आर यू गेटिंग? So derived physical quantities are those, का डेफिनेशन रट्टा नहीं मारने का, except these 7 units all are derived. ये मैं टेक्स्ट बुक से रट्टा मार के नहीं लिख रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ये जो भी है सीधा इधर से आता है, तुम्हारे दिमाग में सीधा जाना चाहिए बस. टेक्स्ट बुक तो दुनिया पढ़ती है प्यारे, तुम इधर सीधा पढ़ो, सीधा जाओगे. ठीक है, तो डिराइव क्या हुआ? एक्सेप्ट दिस 7, इन 7 को हटाने के बाद दुनिया में, जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल क्या दिया कि आपकी फैमिली, आपके जो लोग हैं परिवार के, वही फैमिली है. एक्सेप्ट दिस, नॉट फैमिली, दे आर दुनिया, दे आर पीपल्स फ्रॉम द वर्ल्ड. ओके, मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ, मैं आपकी दुनिया का एक हिस्सा हूँ. ठीक है, तो ऐसे ही किसी के परिवार, फिजिक्स एक फैमिली है, उसमें परिवार में 7 लोग ही पारिवारिक हैं,
बाकी सब लोग बाहर के मिलेंगे तुमको। जो सात उसके अपने परिवार के लोग हैं, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, वही फिजिक्स का फैमिली है। ठीक है भैया, ओके। अब 7 का भी कोई फंडा हो सकता है, तो बाद में बात करेंगे। डिराइव्ड, तो एक्सेप्ट दिस 7 ऑल आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाई डिराइव्ड? टेक्स्ट बुक ने बोला और मैंने रट्टा मार लिया और मैं खुश हो गया? बिल्कुल खुश नहीं होने का। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन पढ़कर बिल्कुल खुश नहीं होने का। ये बिल्कुल वैसा हो गया, एक मूवी देख कर आ गए, हम खुश हो गए। आप क्या ऐसा स्टार बन सकते हो? जिस दिन आप सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल बन जाओ, उस दिन खुश होने का। इसके पहले खुश नहीं होने का, टाइम पास करने का बस। तो एक्सेप्ट दीज 7 ऑल आर डिराइव्ड। Why derived? Because they are obtained from fundamental. How obtained? हर क्वेश्चन का जवाब है। फिजिक्स मतलब साइंस का मतलब ये है कि आपके अंदर से सवाल आने चाहिए। How, why, when? तो ये हो गया भैया, मैंने बताया कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उनसे जो है बनते चले जाएंगे। अभी एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन मत लो, कि डायरेक्ट बता रहा है, ये पढ़ते जाओ। तो ये हो गया। अब जैसे मैंने बोला डिराइव्ड क्या हुआ? एरिया। मैंने बोला ना, फिजिक्स का परिवार 7 लोगों का है, बाकी सब बाहर के लोग हैं, दे आर डिराइव्ड। एरिया इज अ डिराइव्ड, लेकिन कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सपोज एरिया, प्लेन एरिया, लेंथ का क्या होता है? मीटर। इसका भी क्या होता है? मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो लो, हो गया। एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड मीटर स्क्वायर इज डिराइव्ड यूनिट। हो गया। इसका मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी दैट वी कैन नॉट मेक द लिस्ट। मैंने बोला ना, 7 के अलावा करोड़ों, मिलियंस एंड बिलियंस फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप भी कंटाल जाओगे, मतलब नहीं है, सब आने वाला है। अब आता है बेटा तीसरा टाइप की, दैट इज योर सप्लीमेंट। ठीक है। तो बेटा ये जो हमने बोला कि 7 के अलावा जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उसकी जो यूनिट होती है उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है वैसा ही नाम रख दो यूनिट का, यूनिट का अलग से नाम नहीं रखने का। ठीक है। जैसे अंग्रेजों में होता है ना, है? माइकल के बेटा पैदा हुआ, है? माइकल, माइकल, माइकल के बेटा पैदा हुआ, उसने नाम रख दिया माइकल का सन, मतलब माइकल सन। तो यहाँ पे आपको वही करना है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। ऐसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर ओनली टू। नंबर 1 इज एंगल, नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। पहले तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता, रट्टा मार के बैठ जाते। तो these are our only two physical quantities which are known as a supplementary, and their units are known as a supplementary units. फिर मैं वापस बता रहा हूँ, जैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा उनका नाम, उसकी यूनिट का नाम वैसा ही रख देंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट का नाम हुआ फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम, उसकी यूनिट का नाम हुआ डिराइव्ड यूनिट। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी यूनिट का नाम हुआ सप्लीमेंट्री यूनिट। ये कोई संख्या ही नहीं है, दे आर मेनी नंबर। उनका 7 है, ये 2 है, ये 2 ही है, 2 ही रहेंगे अभी तक। तो जब तक आप पढ़ोगे 2 ही रहने वाला है, कोई नया रिसर्च अभी आ नहीं रहा है। वो 7 है, वो 7 ही रहने वाला है लाइफ टाइम। दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए या मिल जाए या कुछ भी हो जाए, वो 7 ही। हाँ, जो भी होगा इधर हो सकता है, इधर कोई भी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। दैट इज डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब मैंने बोला ना, आपकी फैमिली मेंबर के अलावा कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो दुनिया में हो रहा है, आपकी फैमिली में नहीं हो रहा। ठीक है भैया, आगे चलें। तो इस टाइप से हमने देखा। अब यहाँ से 2 चीज समझना है आपको। एंगल एंड सॉलिड एंगल आर आवर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दे आर यूज्ड इन अ वेरी रेयर केस। तो रेयरली वी यूज देम, बहुत ही कम इसको यूज करते हैं, एक्चुअली यूज करते ही नहीं है। नहीं के बराबर, कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार कभी आ गया, 6 महीने में कोई एक बार आ गया। तो ये हमारा रेगुलर, इनसे हम रेगुलरली टच आएंगे। फिजिक्स पढ़ना है तो यहीं से स्टार्ट होगा, फिजिक्स यहीं पे खत्म होगा, फिजिक्स यहीं से शुरू होगा, यहीं पे खत्म होगा। ये गरीब लोग हैं, इसको ध्यान रखें। तो एंगल, एंगल का मतलब हुआ रेडियन। तो एंगल हमारा क्या होता है, उसका ऐसा ही। तो सप्लीमेंट्री यूनिट पहला होता है एंगल, उसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है रेडियन।
दूसरा होता है सॉलिड एंगल, उसका यूनिट को बोलते हैं स्टेरेडियन। इसके सिंबल्स क्या होते हैं, तुम टेक्स्ट बुक थोड़ा देखो, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने किलोग्राम का सिंबल लिख दिया, और आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा टेक्स्ट बुक देखो, वैसे देख ही रहे हो, ठीक है। और इधर यार, इधर मैंने फुल नेम लिख दिया है, इसका सिंबल तुम लोग खुद देख लेना। तो यहाँ से हमने तीन चीज देखी, अब मैं इसको यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ। तो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हियर, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, दैट physical quantities are three and their units are of three. Means physical quantities are of three types and respectively their units are also called same. Fundamental physical quantity, they are seven in number. Seven. Okay. Supplementary are only two. Except this, all are divided. खत्म, ठीक है। ओके, अब ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि मैं हर चीज समझाया हूं तो इसको थोड़ा समझा दे रहा हूं। ये क्या है, एंगल और स्टेरेडियन क्या होता है, 2 मिनट में बताता हूँ। तुम अपनी नोटबुक के अंदर, तुमसे बोलो 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तुम बना दो, ये बना दो। तो जब आप अपने किसी फ्लैट जमीन के ऊपर या पेज के ऊपर या फ्लैट चीज के ऊपर कोई एंगल बनाते हो, उसको एंगल बोलो। और इसको सही मानने में हम we used to call it short, actually its full name is plane angle. The full name is plane angle, but as human beings are habitual of using the shortcuts, so we are, instead of saying the full plane angle, we used to say only angle. So if you are drawing on your page the 30 degree or any values angle, that is your plane angle and its unit is radian. अब आप बोलोगे डिग्री होता है, डिग्री भैया मैथ्स में चलता है, फिजिक्स में रेडियन। हाँ, आप सही जा रहे हो। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई, इट इज नॉट अ क्यूरियोसिटी। इन फिजिक्स द एंगल विल बी मेजर्ड इन रेडियन, 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 ओके, नॉट इन डिग्री। डिग्री इज मेड फॉर मैथमेटिक्स। In case of, if you are having the degree, angle in degree, you have to convert in radian. How to convert, we will teach you when the time will start. Then comes the stereoradian, that is solid angle. Now plane angle तो समझ में आ गया कि if you make draw any angle on your notebook's page, that is your plane angle. Okay, ये हमारा plane angle हो गया। अब इसके अलावा मान लो तुम एक तरबूज लेने हम जाते, तरबूज, वाटरमेलन। तो तरबूज वाला क्या करता है, वो देखता है कि कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, अच्छा है कि नहीं है, तो तुरंत नाइफ लेता है, उसको काट कर एक पीस निकाल देता है। वो जो पीस निकालने के बाद जो तरबूज के अंदर जो खड्डा होता है, द होल विच इज मेड बाय, ओके, कटिंग अ पीस ऑफ वाटरमेलन, ओके, दैट इज सॉलिड एंगल। समझ में आया, समझ में आया, वही है सॉलिड एंगल। तो एंगल दो टाइप के होते हैं। कौन सा, वाटरमेलन में जो हम नाइफ से काट कर जो पीस कट करके निकालते हैं, उसके बाद जो उसके अंदर होल बचता है, वो सॉलिड एंगल, उसको फिजिक्स सप्लीमेंट्री यूनिट बोलता है। अच्छा, उसके यूनिट इस फिजिकल, सॉलिड एंगल इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उसके यूनिट को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट, दैट इज योर स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस कैन बी मैनी बट फंडामेंटल आर दिस ओनली। मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे होल इंग्लिश इज बेस्ड ऑन 26 अल्फाबेट, होल मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन, अब किसी बच्चे को प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं आता तो क्या कर लेगा मैथ्स में, तो बचपन से जो उसके डर बैठता है, वो 10th तक आते आते वो डर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो 11th में मैथ से डरने लगता है, और इसलिए मैथ से बचने के लिए वो इधर उधर भागता है। लेकिन वो कॉमर्स में जाता है तो भी उसको मैथ्स करना पड़ता है, और अगर वो बायो लेता है तो भी उसको मैथ्स करना पड़ता है। जीते जी आपको मैथ्स से छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपकी जन्म के साथ लगा है और जन्म के मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। जिस टाइम तुम पैदा हुए उसी टाइम मैथ शुरू हो गया, कितने बजे पैदा हुआ, कौन सी तारीख को पैदा हुआ, लो मैथ शुरू हो गया। तुम पैदा नहीं है उसके पहले मैथमेटिक्स आ गया। कितने तारीख को गया, देखो तुम किसी का फोटो देखते हो तो उस पर लिखा रहता है क्या, 1942 टू 2018, इसका मतलब ये आदमी 1942 में पैदा हुआ था, 2018 में चला गया। तो मैथमेटिक्स, अब some of the students have the fear of maths. Don't fear with the maths. Fight. Okay. Okay, guys. So far we have, now I am going to take some examples of derived fundamental units.
कि हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपसे बोला बच्चों से बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो ये देखो APPLE, ये कैसे बना? अल्फाबेट यूज किया मैंने, बात खत्म हो गई। मैंने बोला B फॉर बुक, कैसे बना? BOK। T फॉर टी, 3 अल्फाबेट वार यूज। कहां से आया? अल्फाबेट अल्फाबेट अल्फाबेट, और ये क्या बन गया? वर्ड। तो दुनिया के जो भी वर्ड है वो किससे बन रहे हैं? अल्फाबेट से। तो अब देखो यहाँ इन 7 के अलावा लेंथ मास टाइम को छोड़ दो, सबसे पहले आओ वेलोसिटी, स्पीड ले लेते। स्पीड, स्पीड तुम बचपन से जो पढ़ के आए उसी की बात करता हूँ। स्पीड क्या है हमारा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड फंडामेंटल की लिस्ट में नहीं है, तो जो इसकी लिस्ट में नहीं है वो डिराइव्ड हुआ। अब ये तो मुझे पता चल गया कि डिराइव्ड है, लेकिन इसका यूनिट क्या है वो तो लिस्ट में नहीं है। समझना बात को, लिस्ट में नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस को हटा के थोड़ा लेंथ लिख दो। टाइम तो लिस्ट में दिख रहा है, तो टाइम को तो हम टाइम ही रहने देंगे। देखो जो यहाँ पे लिस्ट में से हर चीज उठाना है, तो डिस्टेंस वर्ड इज नॉट गिवन इन द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज लिस्ट। तो फिर हम क्या करेंगे? अरे यार अब मैं इसको स्पीड का यूनिट कैसे बनाऊंगा? अरे स्पीड का यूनिट कैसे बनाएगा भाई? डिस्टेंस क्या है? लेंथ हुआ ना, डिस्टेंस माने लेंथ। अब लेंथ और टाइम, अब यहाँ देखो लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को किसमें मेजर करेंगे? लिस्ट के पास जाओ, सेकंड में। अब ये बार बार लिस्ट पे नहीं जाने का, इसको दिमाग में उतार लो। ये 7 तुम्हारे साथ है, आई रिपीट, अगर ये 7 तुम्हारे साथ है तो फिजिक्स तुम्हारे साथ है। अगर ये 7 तुम्हारे साथ है तो फिजिक्स तुम्हारे साथ है प्यारे। कहीं भी नहीं रुकेगा, कोई रोकने वाला होगा भी नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़। एकदम स्पीड से भागेगा तो गिर जाएगा ठोकर खा के। अब इसका सिंबल लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं एम एस माइनस। तो अब हमको क्या मिल गया? एसआई यूनिट, सॉरी डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड। अब जो स्पीड का यूनिट आया इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी का भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यूनिट तो वही रहने वाला है। आप स्केलर वेलोसिटी और स्पीड इज सेम थिंग, ओनली डिफरेंस इज ऑफ when you say a train is moving with 60 km per hour, that is speed. When you say a train is moving 60 km per hour in east, vector, डायरेक्शन लगा दो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा वेक्टर, बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना? चलो एक दो और बनाते हैं, एक दो और बना के देता हूँ। अब आपको मैं बोल रहे हैं, आपका सबका ध्यान जा रहा है सर ऐसा यूनिट, यही तो है ऐसा यूनिट। पैसा देख लो, जो खाली हो ले जाओ, इधर से जाओ, इधर से ले लो, देखो जो खाली पड़ा हो ना ले जाओ। ठीक है, अब आता है हमारा, आपने बोला कि सर यूनिट्स के कितने टाइप होते हैं। ये जो फंडामेंटल है इसी को ऐसा यूनिट बोलते हैं। एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, और इसको पढ़ते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मींस इंटरनेशनल सिस्टम, हम लोग इसको ऐसा पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड एसआई यूनिट। व्हाट इज दैट? नथिंग, इसी का दूसरा नाम है। एक आदमी के नाम होते हैं दो, घर में नाम पप्पू, ऑफिस में नाम पवन कुमार गुप्ता। तो इफ पवन कुमार गुप्ता कैन बी सेड पप्पू, then one person has two names, one person has two names. Okay, similarly
Either you say the basic quantities and their units are basic units, all 7 basic units are called SI units. Nothing. So finally conclusion, it's time to pack up. Next time we will meet. तो आज हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रीकैप कर लेते हैं. तो रीकैप करने के लिए रीकैप पहला हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज टाइप, then we discuss units type, then we discuss about how to derive units. So every time whenever you need a derived unit or derived physical quantities unit, you have to come to this list. If something is not available in this list, then forget about that. Because you have to, whatever, suppose you say, let me clear. It's now I think it's going to be finished. Time is over, guys. We will meet next time. Okay, thank you very much.